Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. So, in today's lecture, we are going to discuss chapter number 4, the availability. So, in our previous lectures, we discussed three non functional components. If you remember, in chapter number 3, so that were the one of them was the availability, security, okay, was there also there. So in this chapter, we're going to discuss the availability. Not only we will discuss, but we will try to calculate that how much percentage the system will be available in the year, in the month, and so on. So first we need to discuss what is availability. So availability means something should be available at the present at the required time. If we're talking about some systems of anything, means the system should be available at the time, every time when we want to use in 24 hours per day. For example, if you want to access some website, the website should be available every time. So you can access it from anywhere and any time. There shouldn't be any restrictions of the time. So everyone accept their infrastructure to be available all the time. This is what we expect. That if we are using the services and if we pay for these services, the services should be 100% available. For example, maybe you're using the internet, mobile internet, or the PTCL internet, or the Zoom devices, and so on. So, what do you expect? You expect that internet should be available 24 hours to me, so you can use anytime. Okay. So remember one thing: the 100% of availability is not possible in this world. You cannot find any system which is available 100%. Even though in every years, maybe for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 20 hours, there could be the problem in the system can be unavailable for the repair and so on. Maybe you, when you visit any website, maybe you said that this website is under repair and so on. So this is what the availability of the services and the unavailability of the services is because of different reasons. So we have to keep in mind that there is no any system exists in this world that is 100% available. No. Yes, you can find a system which are 99.9% available, 99.999% available, 99.8% available, but you cannot find any a single system which is 100% available in the market. Not in the market, but in the use. So according to a survey which is conducted in 2014, if you'll see here, 46% of the company using their own data centers. Means 46%, around this is near to 50% of the companies, they use their own data centers for the storage purpose. But they have at least one business impact data center outage over 1-2 months. Means at least one time they are facing the unavailability of the system in 21 2 months, and so means 1 year. एक साल में उनको कम से कम कुछ ना कुछ अनअवेलेबिलिटी का एक मर्तबा इशू आता है कि सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इवन दो डेटा सेंटर्स देयर ओन डेटा सेंटर एंड इट इज इन देयर अंडर कंट्रोल but still you can't say that it can be 100% available every time into 100 years. No, maybe in 1 year there could be a one time disturbance in the service. So the main thing is how we can calculate the availability of the systems. So we can calculate the available system using different method. But here I want to clear
If we talk about the 100% availability, there could be 99%, 99.999, and so on. A component can be available. For example, telecommunication component that could be available for the system. उसकी हाईएस्ट अवेलेबिलिटी हो सकती है एक कंपोनेंट की, मगर एक कंप्लीट सिस्टम की आप कहें कि 100% अवेलेबल हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक कंप्लीट सिस्टम इज मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट. कोई ना कोई मसला हो सकता है किसी न किसी कंपोनेंट्स में. ड्यू टू दिस कंपोनेंट्स द सर्विस का कोई ना कोई इशू बन सकता है. हाँ, अब एक कंपोनेंट्स की कोई कोई कंपनी गारंटी दे सकती है कि भाई ये कंपोनेंट ज्यादा चलेगा, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, डिस्टर्बेंस कम होगी, दे गिव गारंटी. वो टेलीकम्युनिकेशन एक कंपोनेंट हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर एक राउटर हो सकता है, एंड सो ऑन, कुड बी एनी डिवाइस. तो कहने का मकसद ये है कि सिंगल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो एज कंपेयर टू फुल सिस्टम की. So availability can neither be calculated nor be guaranteed for front. एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. गारंटी ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल. कोई भी 100% अवेलेबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकता कोई भी सिस्टम. And calculate, yes, there is no standard format for the calculating the availability of the system. But few experts, they provide some methods so that using that method we can calculate, but that you can say that that is not a standard one. So it can only be reported only afterwards when system has run for some years. We can only report that अगर कोई सिस्टम 10 साल कंटिन्यूस चल रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, या 1 साल वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सिस्टम चल रहा है, वी कैन रिपोर्ट दैट या this system has highest availability. But it cannot be guaranteed that the availability of the system will continue in the next 2 years or not. We cannot guarantee it, even though we cannot calculate it. Just we can report what we have observed the system in whole year or 2 years or 10 years. आपके पास मोबाइल है, आप कहते हैं कि यार ये क्या, ये इसकी वो क्या है कि बड़ा, जैसे नोकिया का मोबाइल था कि बड़ा स्ट्रांग मोबाइल है, उसको टूटता नहीं है. कैसे आपको पता चला? वन ये यूज्ड इट, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आपने यूज किया, वो गिरा 10 मरतबा, उसकी स्क्रीन नहीं टूटी, तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये सिस्टम बड़ा पायदार सिस्टम है. ठीक है. सो दिस इज हाउ you repair it after using the system. Over the years, much knowledge and experience is gained on how to design high available system. So many work has been done on these things. If you go and read the many research articles, a lot of scientists are working on this area, that how we can make 100% availability of the system. But even though lots of research, there is no 100% availability of the system. So they are going to control the failover, they are going to control the redundancy, means repetitions, structured programming, avoiding single point of failures, implementing system management. So all the work has been done on these areas to control the unavailability of the system. So the availability of system is usually expressed as a percentage of uptime in a given time period. So what is it basically? Availability, it is a percentage of available system in a given time. Available services of the system, you can say that. For example, given time was 1 year, so you can say that how much percent the system was available during this whole year, complete year. So you can calculate the available percentage of availability usually in 1 year or of 1 month. उसके लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कितना अवेलेबल. So for example, downtime expressed as percentage. If you will see here in this the table, the availability is, let's suppose
इज 99.8, एक सिस्टम इतने परसेंट अवेलेबल है. Okay, 99.8, it is good availability. So when you will come I'm sorry, when you will calculate the downtime per year, downtime means unavailability of the system. 99.8, बाकी क्या 0.2% system was unavailable in a given time period. Okay, इसका मतलब है 99.8% अवेलेबल था सिस्टम, बाकी 0.2% अनअवेलेबल था जो पीरियड गिवन है. सो वो अनअवेलेबल कितना टाइम हो सकता है? सो इफ यू सी हियर इन सेकंड कॉलम, डाउन टाइम पर ईयर 17.5 आवर्स, मैंने एक साल में 17.5 घंटे अनअवेलेबल हो सकता था अगर 2.2% सिस्टम अनअवेलेबल हो तो. और अगर वो अनअवेलेबिलिटी या डाउन टाइम पर मंथ काउंट करें तो इतने मिनट्स एक महीने में आपका सिस्टम अनअवेलेबल था. एंड इफ वी कैलकुलेट डाउन टाइम पर वीक 20.20 मिनट्स एक वीक में सिस्टम आपका अनअवेलेबल होता है. देखिए अवेलेबिलिटी 99.8% है, मगर फिर भी कितने एक हफ्ते में 20 मिनट आपका सिस्टम अनअवेलेबल था अगर जिस सिस्टम की 99.8% अवेलेबिलिटी है. और मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं और साल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज अदर सिस्टम इट इज 99.9%, इसकी अनअवेलेबिलिटी अगर काउंट करें कितनी होगी? 0.1%. ओके, तो 99.9% सिस्टम इज अवेलेबल, तो इसकी डाउन टाइम पर ईयर मींस अनअवेलेबिलिटी पर ईयर कितने घंटे होगी? 8.8 आवर्स. और इसको हम पर मंथ में काउंट करें तो 43.2 मिनट्स, और वीक में ये डाउन टाइम काउंट करें तो 10.1 मिनट सिस्टम कैन बी अनअवेलेबल इन अ वीक. Let's suppose the third system has availability 99.99, means 49. इसकी अनअवेलेबिलिटी क्या होगी? if you will calculate, अब कैलकुलेट कर. सो डाउन टाइम पर ईयर इसकी कितने मिनट्स 80 और 52.6 मिनट्स अनअवेलेबल एक साल में. अगर मंथ में 4 मिनट्स, अगर वीक में 1 मिनट अनअवेलेबल सिस्टम हो सकता है. इवन दो इसकी देखें अवेलेबिलिटी कितनी हाई है, 99.99 अवेलेबिलिटी है, फिर भी हफ्ते में 1 मिनट के लिए भी सर्विस डिस्टर्ब हो सकती है. इसका मतलब लेट्स सपोज हमारे पास चौथा सिस्टम है जिसकी 99.999 मींस 5 नाइन्स इसकी अवेलेबिलिटी है. तो अगर इसका डाउन टाइम कैलकुलेट करें पर ईयर तो 5.3 मिनट्स अनअवेलेबल सिस्टम था, और डाउन टाइम पर मंथ 25.9 सेकेंड. एंड अगर डाउन टाइम पर वीक दैट इज 6.1 सेकेंड per week. So even though it is not 100% available, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है ही है सिस्टम्स में. So calculating availability typical requirements used in service level agreement today. So when we buy services of the system, we have an agreement that the availability of the system is this percentage from the service providers. अगर आप सर्विसेज किसी के यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल क्लाउड की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक यू आर अवेयर अबाउट द क्लाउड सर्विसेज. अगर आप कोई जीमेल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वहां पे एग्रीमेंट होता है. ओके, तो एग्रीमेंट क्या होता है कि ये सर्विस तकरीबन 99.8 और 99.9% अवेलेबल हो. They never tell you that the service is 100% available because they know that there could be any problem in the system due to any component. So service level agreements, they put the agreement that the system could be available 99.8 or 99.9 available per month for a full IT system.
बट वो एक जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एक मार्जिन रखते हैं, इसलिए वो आपको 100% नहीं कहेंगे कि 100%, इवन दो दे विल ट्राई टू प्रोवाइड यू 100%, बट वो मार्जिन रखते हैं कि नहीं हो सकता है हम एग्रीमेंट कर बैठे हैं कि हम 100% सर्विस देंगे, किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी भी इश्यू की वजह से अगर सर्विस अनअवेलेबल हो तो कस्टमर क्लेम करेगा। You signed in the agreement that your service will be 100%. That's why the service provider keeps a margin that services will be available 99.8 or 99.9 per month. But they try to provide 99.99 or higher. Service provider कोशिश करता है कि अपना 100% सर्विस दे। Okay, if we take 99.9999% uptime is known as a carrier grade availability. So remember, this availability is not for whole system. Never. ये 99.999 means 59 कभी भी किसी सिस्टम की नहीं हो सकती, because this is very near to 100%. Yes, this availability percentage of availability can be for a component. एक component की हो सकती है, भाई ये component एक साल तक 99.999% अवेलेबल हो, इसलिए एक पार्ट की हो सकती है, बट फुल सिस्टम की नहीं हो सकती। So higher availability level for a complete system are very uncommon. It's not a common thing. Maybe usually कोई एक लाखों में एक आपको सिस्टम मिले जो 100% या 99.999% So complete system, they are impossible to reach at this availability 99.9999. Yes, a single component can be available. Yes. Okay. So let's talk how we can calculate availability. While 99.9% uptime. Uptime का मतलब means services is available. Means 525 minutes of downtime per month. अगर कोई सर्विस 99.9% अवेलेबल है, इसका मतलब है वो 525 मिनट्स अनअवेलेबल होगी पर ईयर। शायद हमने यहां पे डिस्कस किया था, ये टेबल में नहीं। ओके, सो दिस डाउन टाइम शुड नॉट अकर इन वन इवेंट। रिमेंबर, ये एक ही टाइम 225 मिनट एक ही टाइम पे नहीं होगा कि सर्विस इतने मिनट्स अनअवेलेबल, नहीं, वो शायद आज 2 मिनट हो अनअवेलेबल हो तो एक वीक के बाद 4 मिनट्स अनअवेलेबल होगी, तो एक महीने के बाद शायद वो उसमें और मसला आ जाए, वो 5 मिनट्स के लिए सर्विस चली जाए। सो डिफरेंट यानी कि ओकेजन पे ये अकर होगी। So it is therefore good practice to agree on the maximum frequency of unavailability. We need to agree. We need to understand that there could be maximum frequency for unavailability. For example, उस frequency को divide कैसे करें? So unavailability को एक range में divide किया गया, experts ने एक range बनाई है. So if you see here unavailability in minutes, number of events. क्योंकि अगर इस एग्जांपल में जैसे ऊपर बताया गया कि 525 मिनट्स अगर डाउन टाइम पर ईयर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 80 टाइम 525 मिनट सर्विस गायब थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो डिफरेंट टाइम पे वो सर्विस डिस्कनेक्ट हुई होगी, तो उन्होंने कैलकुलेट किया फर्स्ट मंथ से 12 महीनों तक के कितने मिनट्स अनअवेलेबल थी। सो लेट्स सपोज अनअवेलेबिलिटी 0 to 5 मिनट्स में नंबर ऑफ इवेंट्स पर ईयर कितने हो सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू 35 इवेंट, यानी कि 0 से 5 मिनट की अनअवेलेबिलिटी ये लेस देन और इक्वल टू 15 इवेंट्स में हुई होगी। मींस एक इवेंट्स में शायद 2 सेकंड हो अनअवेलेबल, आगे जाके नेक्स्ट डे में 1 मिनट अनअवेलेबल हो गई, मानी ये से 15 आपके इवेंट्स में या एपिसोड्स में ये 0 to 5 मिनट सर्विस अनअवेलेबल होगी। और 5 to 10 में अनअवेलेबिलिटी मिनट्स ये क्या होता है? ये लेस देन और इक्वल टू 10 इवेंट्स में हो सकती है, ठीक है। देन 10 to 20
10 to 20 ये लेस देन और इक्वल टू 5 में, एंड 20 to 30 ये एक ही इवेंट में हो, 2 इवेंट्स में हो सकती है, और ग्रेटर देन 30 लेस देन और इक्वल टू 1 इवेंट पर ईयर. So this is, they define that they can understand the maximum availability, that okay, maximum is more than 30 minutes. वो वंस एक ईयर हो सकती है 30 मिनट्स के लिए सर्विस अनअवेलेबल हो सकती है. ये उन्होंने मैक्सिमम एक चार्ट बनाया कि भाई we think about maximum unavailability of the system. So the two terms are very important when we talk about the availability of the system. The first one is MTBF, the second one is MTTR. So basically MTBF stands for mean time between failures. मीन्स जितने जितने फेलियर हुए हैं उनके बीच में जो वर्किंग टाइम है हमारा मीन टाइम, उसको कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. So what is mean time between failures? The average time that passes between failures. वो टाइम जो डिफरेंट फेलियर्स के दरमियान में पास हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेल अभी एक फेलियर हुआ, ठीक है, उसके बाद वो फेलियर ठीक हुआ, टाइम हो गया, टाइम सर्विस चली, देन अगेन सर्विस का फेलियर हो गया, उसके बाद कल सर्विस का फेलियर हो गया, एंड सो ऑन. इस टाइम को जो बिटवीन फेलियर टाइम है उसको हम क्या कहते हैं? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. सो मीन टाइम. दूसरा है मीन टाइम टू रिपेयर. फेलियर होता है, सर्विस अनअवेलेबल होती है, उसको रिपेयर करके ठीक भी किया जाता है, तो कितना टाइम मीन टाइम लगेगा उस सर्विस को रिपेयर करने में. ओके, द टाइम इट टेक्स टू रिकवर अ फेलियर और फॉल्ट, उसको क्या कहते हैं? मीन टाइम टू रिकवर. You can see the diagram in this slide. So this is what you have MTBF, different. आपके पास ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स होते हैं, ये आपकी सर्विस चल रही है, ठीक है, ये आपकी सर्विस है, मीन टाइम्स फेलियर्स है यहाँ पे, एंड देन इफ सर्विस इज फेल्ड देन वी विल अप्लाई मीन टाइम टू रिपेयर. वी रिपेयर हियर सिस्टम. तो ये कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम्स को रिपेयर करने में कितना हमारा मीन टाइम लगा था. Why we calculate mean? Mean means average, because एक साल में हो सकता है 5 मरतबा सिस्टम फेल हो, और हम वो 5 का मीन टाइम लगाते हैं कि भाई टाइम 1 जब सिस्टम फेल हुआ था कितना टाइम लगा था, प्लस जब सेकंड टाइम सिस्टम फेल हुआ था तो रिपेयर में कितना टाइम लगा था, प्लस थर्ड टाइम सिस्टम फेल हुआ था रिपेयर में कितना टाइम लगा था, प्लस फोर्थ टाइम सिस्टम रिपेयर में कितना टाइम लगा था, फिफ्थ टाइम सिस्टम रिपेयर में कितना टाइम लगा था, डिवाइडेड बाय 5. तो ये आपका क्या होगा? रिपेयर होगा. वंस काम चल रहा है, सिस्टम रिपेयर हो रहा है, तो आपकी सर्विस इज अनअवेलेबल. सो इफ यू विल सी हियर, ये आपकी यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस है. और यहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ, देन रिपेयर काम चला, यहाँ पे रिपेयर इज डन, द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, देन अगेन सर्विस विल गो ऑन, एंड अगेन वी कैन सी द MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. आगे जाके भी फेलियर्स होते हैं, एंड सो ऑन. So if you will see this one, mean time failure, some components have higher mean time between failures than others. It depends on components. Components vary करते हैं, हर एक components की अपनी अपनी होती है, सिस्टम की अपनी अपनी होती है. So हार्ड डिस्क का हो सकता है इतना हो, ये mean time between failures, यानी कि इतने आवर्स हार्ड डिस्क काम करती है, हार्ड डिस्क, एंड पावर सप्लाई इतने आवर्स पावर सप्लाई काम करता है. फैन की इतनी MTBF है, इथरनेट की इतनी हो सकती है, रैम की इतनी. आप कह सकते हैं कि फ्रॉम वेयर दिस डेटा केम. बेटा ये स्टैंडर्ड डेटा है जो कंपनीज जब टेस्ट करती हैं तो ये डेटा प्रोवाइड करती हैं. ओके, सो हर एक सिस्टम के कंपोनेंट्स का मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स इसका मतलब ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज. ओके, ये भी कह सकते हैं. So the mean time between failure is expressed in hours. How many hours will the component service work without failure? As I told you, that mean
time between failure means availability of the service. Some typical mean time between failure figures are shown in table 3. Hard disk kitni available? Yeah, already it is given here. So no need to discuss this table again. So let's calculate. The question is that how we can calculate mean time between failures. Let's suppose, let's have an example. In case of, for instance, hard disk, कितनी 1000 hard disk could have been tested for 3 minutes. क्योंकि आप एक डिस्क को 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के टेस्ट के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि जितना आप ज्यादा टाइम पे टेस्ट करेंगे इतना उसकी अवेलेबिलिटी की आप कंफर्मेशन होगी. सो आप डिस्क को 10 साल के टेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ डिस्क रखेंगे, उसके लिए एक टाइम पीरियड करेंगे, फिर वहां पे कैलकुलेट करेंगे जितनी डिस्क कितने टाइम पे सर्विसेज डिस्कनेक्ट हुई, फिर वो आप कैलकुलेट करेंगे. सो हमारे पास वी टेक हियर इन दिस एग्जांपल 1000 डिस्क टेस्टेड फॉर 3 मंथ्स. कितने महीनों के लिए थी? 3 महीनों के लिए. सो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम 5 डिस्क फेल्स. कितनी डिस्क फेल हुई 3 महीनों में? कितनी डिस्क फेल हुई? 5. द मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज कैलकुलेटेड इज बिलो. चलो एक साल का मीन टाइम, ये 3 महीने में हम टेस्ट किया तो हमें एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो 3 टाइम, सो द टेस्ट टाइम इज 3 मंथ. 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, साल में कितने हो गए? 3 times 3 6, 3 times 3, ये हो गया 4 पीरियड हो गया बेटा. 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12. मतलब साल में अगर हम करें तो 4 टाइम्स ये 3 मंथ के कितने पीरियड होंगे? 3 3 3 3 and 4. सो 1 year has 4 these periods. 3 महीने के एक साल में कितने पीरियड्स आएंगे? 4. So if the discs are tested for 1 year, we can say that would have tested 1 year 4 ज़रबिया 5. 3 महीने में 5 डिस्क, अगर 3 महीने में 5 डिस्क फेल हुई थी तो एक साल में कितनी डिस्क फेल होंगी? 20 डिस्क. फर्स्ट 3 years में 5 डिस्क फेल, देन सेकंड 3 years में 5 डिस्क फेल, ऐड करते जाएं 4 + 5 10, देन थर्ड 3 months सॉरी नॉट ईयर, 3 मंथ में और 5 डिस्क फेल हो गई, +5 15, और लास्ट 3 months में 5 डिस्क तो 20. सो दिस इज 4, क्योंकि 3 months के एक साल में 4 पीरियड होते हैं, तो 4 टाइम वी नो दैट एक टाइम 3 months के पीरियड में 5 डिस्क फेल हुई हैं, टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20. सो एक साल में we expect that 20 disk have failed. So in 1 year this could have run. अच्छा 20 disk fail हो तो कितने घंटे डिस्क चली? We can say that we have number of disk 1000. एक साल में कितने होते हैं दिन? 365 टाइम्स घंटे कितने होते हैं? 24. क्यों भाई? ये बिकॉज हम घंटों के लिहाज से काउंट करें. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रन टाइम क्या है? इन डिस्कों का सारा रन टाइम इतना था. ओके, ये रन टाइम है ओनली. सो अब हम क्या करना है? बिकॉज देयर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम, तो उसको भी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो ये टोटल रन टाइम आवर्स में, और हमें पता है कि कितनी डिस्क फेल हुई थी, थाउजेंड्स में से इतनी डिस्क फेल हुई थी, 20 फेलियर्स. इन डेटा को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा तो इतने आवर्स फेल्यूर थी, इनमें से इतने घंटे फेल्यूर्स थी डिस्क हमारी. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फेल्यूर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम यूजिंग MTBF. Okay, so in next lecture, inshallah, we will discuss MTTR, mean time to repair. So thank you very much for your time. Let me take your attendance. One, two, three, 4. Only 4 students are there. How many students are there? 9. Wait, heavens.